Hi friends, in this session we'll start with this nomenclature of organic compounds. So basically हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नेमिंग देना. थोड़ा बहुत IUPAC आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड डेरिवेटिव्स के अंदर. अब सभी को बेसिक वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट के बाद सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ये सारी चीज आप सभी को पता है. धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे, जस्ट बिकॉज 11th एंड 12th जहां जहां ऑर्गेनिक आएगा, ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर के नीचे नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज IUPAC नेम आपको लिखना पड़ेगा. सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज रूल नंबर 1, लीनियर अल्केन, लीनियर चेन. तो लीनियर चेन का नोमेनक्लेचर किस हिसाब से करेंगे, तो सिंपल वर्ड रूट, ये टेबल आप सभी को लर्न बाय हार्ट होना चाहिए. अगर कार्बन नंबर 1 से 10 हो तो बेसिक वर्ड रूट क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड इज मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक. ये सभी के पीछे अगर अल्केन है तो ANE सफिक्स लगेगा. सो बेसिकली मिथ प्लस ANE दैट इज एंटाइटल एज अ मीथेन अगर कार्बन नंबर 1 हुआ. Likewise 2 carbon word root is eth and suffix is ANE that is called is ethane, and series goes on and on and on, that is propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, non and decane. So rule number 1, find out the longest hydrocarbon chain. This longest chain is called the parent chain. Once again सबसे पहले क्या फाइंड करना है, longest hydrocarbon chain फाइंड आउट करना है, and then longest hydrocarbon chain is known as parent chain. The number of this carbon atom present into this parent chain determined by the word root. Determine the word root means मान लीजिए कि चेन के अंदर 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन मीन्स हेप्ट. हेप्ट आपका हो गया वर्ड रूट. According to this table, on the basis of the number of carbon atom present in a longest hydrocarbon, that is word root is given, or the name of this parent chain can be decided. So once again सबसे पहले आपको क्या करना है, longest कार्बन की चेन फाइंड आउट करनी है, उसके अंदर कितने कार्बन है वो काउंट करना है, और उसी के हिसाब से सबसे पहले वर्ड रूट डिफाइंड होगा. The longest chain may or may not be the straight. हाँ, सबसे पहली चीज वो स्ट्रेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट इट मस्ट कंटिन्यूअस एंड इट मस्ट हैव ओनली 2 ends. पॉइंट नंबर 2, टू शो द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सच alkanes, do not small dash is placed between the 2 carbon atom. सो बेसिकली एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डॉट और स्मॉल डैश प्लेस कीजिए, जैसे CH3 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 CH2 CH3 एंड देन सीरीज गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. Third, the first 4 alkane have the typical common name, while the another name according to this Latin Greek roots denoted by the carbon atom present. That is meth, eth, prop, but, then pent, penta, hexa, hepta, octa, nona and deca. So this is all about your first linear chain के लिए. अब डिस्कशन करते हैं ब्रांच चेन के लिए. In branch chain, IUPAC nomenclature is based on the number of carbon atom present into this longest hydrocarbon chain, that is called as parent chain. This is taken as the root name, or you can say that word root. Word root once again यहीं से आपको डिस्कस करना पड़ेगा कितनी कार्बन है उस हिसाब से for the compound. Point number 2, if more than 2 parent chain contains the same number, the carbon atom select the chain which have the larger number of side chain, that is select the more branch chain. Once again मान लीजिए कि एक ऐसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसके अंदर 2 चेन है और दोनों के अंदर सेम कार्बन है, तो हमें कौन से चेन को प्रायोरिटी देनी है, तो जिसके अंदर ज्यादा ब्रांचिंग हो उसको प्रायोरिटी लेनी है. Select the chain which has larger number of side chains, that is more branched. Different branch in the longest chain is also known as alkyl substituent, that is called as side chain. Now branch chain का जो point number 2 है उसको justification करता हुआ एक example discuss करते तो शायद और concept clear हो जाएगा. देखिए, here in case you have a 2 structure,
मीन्स कौन सी पेरेंट चेन लेनी है और कौन सी गलत है कौन सी सही है वो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले CH3 CH2 CH CH CH3 और दूसरा CH3 CH 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 CH3 CH3। सब कौन सी चेन को प्राइमरी लेनी कौन सी सेकेंडरी लेनी तो किस हिसाब से पता चलेगा। तो सबसे पहले आप लीनियर काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5। बट इफ आई चूज दिस रिंग दैट इज 1 2 3 4 5, दोनों में 5 है। बट अगर मैं ये चेन प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो इसके अंदर हाईएस्ट सब्स्टिट्यूशन है कौन कौन से। फर्स्ट यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे मिथाइल। तो रादर देन टेकिंग अ लीनियर चेन यू हैव टू चूज दिस चेन जस्ट बिकॉज इट हैज लॉन्गेस्ट कार्बन, सॉरी दोनों के अंदर सेम कार्बन चेन है बट इसके अंदर हाईएस्ट ब्रांचिंग अवेलेबल है। सो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। वाई रॉन्ग? जस्ट बिकॉज ब्रांच जो है वो मेन चेन में नहीं आ रहे हैं। करेक्ट सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। वाई? बिकॉज ऑल द ब्रांच कवर, सबसे पहले ये मिथाइल ब्रांच, ये इथाइल ब्रांच, ये मिथाइल, सारे के सारे ये चेन के अंदर आ रहे। दैट्स व्हाई दिस इज अ करेक्ट सिलेक्शन। पॉइंट नंबर 3, numbered the longest hydrocarbon chain in such a way the carbon atom carry the side chain is given the lowest possible number। means अब लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करना है या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करना है। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल 1 2 3 4 5 लेना है या फिर 1 2 3 4 5 लेना है, किस हिसाब से और कैसे पता चलेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है नंबर्ड द लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन इन सच अ वे द कार्बन एटम कैरीज द साइड चेन इज गिवन द लोएस्ट नंबर। जितने जितने जहां पे भी सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं उसके नंबर कम हो इस हिसाब से देखना पड़ेगा। नेम ऑफ डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूशंस गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल अल्केन। इफ hydrogen is removed by this alkane, get the alkyl group. Name of common use alkyl name are as follows। जैसे CH3 एक H निकाल दिया CH4 में से तो वो बन गया मिथाइल, C2H5 बन गया इथाइल, ये बन गया N प्रोपाइल जस्ट बिकॉज 3 कार्बन है, बट CH3 बन गया आइसोप्रोपाइल। लाइकवाइज और आगे नीचे बढ़ते हैं आपको मिलेगा ब्यूटाइल, लीनियर चेन, दिस इज आइसोब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। कैसे सेकेंडरी? क्योंकि ये कार्बन जो है वो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी जुड़ा, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। एंड लास्ट होगा टर्शरी ब्यूटाइल, सो दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल, CH3। इसी हिसाब से सेंटर कॉलम में आप स्ट्रक्चर्स चेक कर लीजिए किस हिसाब से है। सारे के सारे स्ट्रक्चर पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल, नियोपेंटाइल। राइट साइड पे भी स्ट्रक्चर अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड विनाइल, दिस इज कॉल्ड एलाइल, दिस इज कॉल्ड इथाइल एंड दिस इज योर फिनाइल, दिस इज योर बेंजाइल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर साइड चेन। साइड चेन के नंबर और नाम कैसे करना है ये हो गया आपका थर्ड रूल। ये टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, सभी के नाम याद रखने पड़ेंगे, इस हिसाब से आपको नंबरिंग करना है। डोंट वरी, ये आपको मैं PDF एज इट इज भेज दूंगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा। Rule number 4, if 2 or more alkyl substitution on a side chain are present on a longest hydrocarbon chain, then the carbon atom of this present chain are numbered in a such a way that the total of numerical given to carbon atom on which alkyl group are present remains minimum. This is your rule number 4. अगर एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तो ये इजीली पता चल जाएगा। वंस अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर सही है कौन सा नंबर गलत है। सबसे पहला रूल क्या था? फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स दिस चेन इज लॉन्गेस्ट चेन जस्ट बिकॉज 3 सब्स्टिट्यूशन, ये मिथाइल और ये मिथाइल सारे के सारे इसके अंदर आ गए। नाउ नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ्ट करना है। मीन्स नीचे यहाँ पे नंबर 1 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, राइट साइड पे देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6। अब कौन सा नंबर सही कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले जहां जहां सब्स्टिट्यूशन आ रहा है वो नंबर मेंशन कर लीजिए। सबसे पहले 3 कार्बन के ऊपर मिथाइल है, 3 कार्बन के ऊपर ही दूसरा मिथाइल है, तो दैट इज 3 + 3। और एक और मिथाइल है 5 पे,
सो 3 + 3 + 5 = 11 हो रहा है। अगर जो मैं नंबर यहां से कर रहा हूं तो सेकंड नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल, फोर्थ पे 2 मिथाइल, 2 + 4 + 4 दैट इज 10। अब यहां पे 11 सम हो रहा है, दिस इज 10, तो दिस इज लोएस्ट। तो कहने का इंटेंशन नंबरिंग यू हैव टू स्टार्ट इज 1 2 3 4 5 6, नॉट 1 2 3 4 5 6। सर क्या फर्क पड़ा? तो फर्क ये पड़ा कि जहां जहां कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन आ रहा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। अगर ये करेंगे तो 11 आ रहा है, मीन्स सम इज 11, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। और यहां पे सम आ रहा है 10, तो दैट्स वाई ये सही हो जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन कहां कहां है? ये कार्बन पे मिथाइल, ये कार्बन पे मिथाइल और ये कार्बन पे मिथाइल। तो नंबर यहां से स्टार्ट करेंगे तो 2 पे मिथाइल एंड 4 पे 2 मिथाइल। So that's why this is correct one, this is wrong one. Rule number 5, if the same substitution present more than one time on chain, देखिए यहाँ पे सेम है, मिथाइल 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 3 बार आ रहा है। अगर एक का एक फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार आ रहा हो, अगर 2 टाइम्स हो तो डाई, 3 टाइम्स हो तो ट्राई, 4 टाइम्स हो तो टेट्रा, 5 टाइम्स हो तो पेंटा, इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। So here in case मिथाइल कितनी बार आ रहा है? 3 times, so that is called as ट्राइमिथाइल। अगर 2 बार आ रहा होता तो मैं लिखूंगा डाइमिथाइल, अगर 4 बार आएगा तो टेट्रामिथाइल। If the same substituent are present on more than one time on a chain, then the prefix di, tri, tetra, etc. are used together with this alkyl substitution on the position number. One number for each substitution. देखिए CH3 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 CH3। अब यहां पे नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, कहां से होगा? 1 2 एंड 3 कार्बन चेन, तो 3 कार्बन चेन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोपेन। सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल है, 1 और 2, सो दैट्स व्हाई इट्स 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। वंस अगेन सर इसका नाम कैसे किया आपने? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब सर लेफ्ट से किया या राइट से किया, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यहां से करोगे तो भी 2 आएगा, यहां से करोगे तो भी 2 आएगा। सो दैट्स वाई लेफ्ट टू राइट कहीं से भी करो, 2 पे 2 मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन है, तो दैट्स वाई इट्स 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 6th, if alkyl substitution contain the different number of carbon atoms, here इनके सारे के सारे मिथाइल है, बट जो अगर मिथाइल एंड इथाइल हो तो क्या करेंगे? Of the carbon atom at the equal distance from this two end of this parent chain, then the numbering of the chain is done in such a way alkyl group which comes first in alphabetical order gets the lower number. पता चला ये क्या बता रहा है? अगर लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आ रहा है मिथाइल से, तो इथाइल को कम नंबर मिले वो सही नंबरिंग है। देखिए एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। CH3 CH2 CH C2H5 CH CH2 CH3। हियर इन केस अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 पे मिथाइल एंड 4 पे इथाइल आ रहा है, बट जो मैं नंबर यहां से स्टार्ट करूं तो 3 पे इथाइल एंड 4 पे मिथाइल आ रहा है। सो अल्फाबेटिकली इथाइल कम्स फर्स्ट देन मिथाइल, सो इथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 नंबर मिलेगा, विच इज रॉन्ग, बट यहां से स्टार्ट करूंगा तो 3 नंबर मिलेगा। सो इट इज ऑलवेज 3 इथाइल 4 मिथाइल 6 कार्बन चेन मीन्स हेक्स, दैट इज हेक्सेन। वंस अगेन CH3 CH2 CH 3 नंबर पे इथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 6, so word root is hex, तो 3 ethyl 4 methyl hexane. Rule number 7. So conclusion, thus the nomenclature of branch alkane chain can be done as per following sequence. सबसे पहले क्या करना है? Name the branch alkane prefix, that is alkyl substitution of side chain with the position, plus word root. Word root means 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, जो हमने टेबल नंबर 1 देखा वो, प्लस
ANE क्यों सर? जस्ट बिकॉज अल्केन है, उसका सफिक्स ANE है, इसीलिए। अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, शायद उससे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी और ये सारे के सारे रूल भी समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यू आर गिवन CH3, CH, CH3, 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 CH2, CH2, CH3. So let's numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ है? 2 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे 2 मिथाइल। सो 2 + 3 + 3 करोगे तो इस साइड से नंबरिंग होगा, बट जो अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 4 + 4 + 5, सो विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो दैट्स वाई यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते हो आप, नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा। इसीलिए 2, 3, 3, वाई 2 पर एक मिथाइल, 3 पे 2 मिथाइल, सो 2, 3, 3, 3 times that is methyl, so that's why it's a trimethyl, 6 carbon chain, that's why hexane. One more example, longest carbon chain 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं तो 1, 2, 3, 3 पे इथाइल आ रहा है, 4 पे मिथाइल आ रहा है, तो 3 + 4 यहां से लगेगा। अगर मैं ऊपर से कर रहा हूं तो 1, 2, 3, 3 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल आ रहा है। सो दोनों ही केस के अंदर 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूशन है। तो हमने रूल क्या पढ़ा? इथाइल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो 3 मिलेगा, ऊपर से स्टार्ट करोगे तो 4 मिलेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टार्ट विद 1, 2, 3, 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, वर्ड रूट इज हेक्स, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, हेक्सेन। इस तरफ आते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहां कहां है? 1, 2 इथेल, 1, 2 इथाइल, 1, 2 इथाइल, तो बेसिकली 3 इथाइल अवेलेबल है, 1 मिथाइल, अनदर मिथाइल, तो 2 मिथाइल अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से करेंगे तो 1, 2, 3, 4 पे पहला आ रहा है, 5 और 6 पे जा रहा है। बट अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3 and 4, तो 2, 3, 4 is smaller number as compared to 4, 5, 6. Due to this we have to start with the 2, 2 dimethyl, 1, 3, 3, 4 triethyl, 3 इथाइल अवेलेबल है, 2 मिथाइल अवेलेबल है। So that's why we have to start from 1, 2 and 3. So that is 3 पे 2 इथाइल, एक 4 पे, that is 3, 3, 4. Then second number पे 2 मिथाइल है, that is 2, 2 dimethyl and word root is 7, that is heptane. एक और डिस्कस करते हैं, CH3C 2 सब्स्टिट्यूशन, यहां पे एक इथाइल, यहां पे एक मिथाइल, यहां पे भी इथाइल, यहां पे 2 मिथाइल। सो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे या राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले देख लीजिए सम रूल। सम रूल का मतलब सम कर लीजिए कहां कहां सब्स्टिट्यूशन है। सो हियर इन केस 2 नंबर पे 2 मिथाइल, तो दैट इज 2 + 2 4 + 4 8 + 5 + 5 and 6 + 6। जो अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो 1, 2 पे 2, 3 पे 2, 4 पे 1 and 6 पे 2। सो बेसिकली हियर इन केस वी हैव टू स्टार्ट विद इथाइल। इथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए, तो इथाइल 3 और 4 यहां पे आ रहा है, बट मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो 4 और 5 आ रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू स्टार्ट विद 1, 2, 3, 3 पे इथाइल, 4 पे इथाइल, तो दैट इज 3, 4 डाई इथाइल, जस्ट बिकॉज इथाइल 2 टाइम्स है। देन मिथाइल कहां कहां है? तो मिथाइल है सबसे पहले 2, 2, देन दैट इज 3, then 6, 6. So 2, 2, 3, 6 and 6. Pentamethyl heptane. Once again, third number के ऊपर इथाइल, fourth number पे इथाइल, तो that is 3, 4 इथाइल। मिथाइल कहाँ कहाँ है? 1, 2, that is 2, 2, 3 पे मिथाइल and 6 पे मिथाइल। Pentamethyl heptane. So this is our IUPAC name.
2-3 और प्रैक्टिस करते हैं, शायद और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। सो नेक्स्ट उसी के नीचे एक और है, देखिए यहाँ पे तीनों चेन अवेलेबल है, प्रोपेन भी है, मीथेन भी है और इथेन भी है। और सबसे बड़ी ब्यूटी, तीनों के दोनों तरफ से सेम सब्स्टिट्यूशन है। 1 2 3 4 पे मिथाइल, 5 पे प्रोपाइल एंड 6 पे इथाइल। सो प्रोपाइल लॉन्गेस्ट चेन है, लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट जाओ, कहीं से भी जाओ आपको सेम नंबर पे ही प्रोपाइल मिल रहा है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो यू हैव 6 इथाइल, 4 मिथाइल, 5 प्रोपाइल, nonane, just because carbon chain is 9, so that's why it's a nonane। एक और प्रैक्टिस करते हैं, that is this। देखिए CH3 CH2 CH CH3 C CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने नंबर कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन मीन्स हेप्टेन। अब नंबरिंग 1 2 3 4 यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 कहीं से भी करो, 4 नंबर पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है। बट अगर मैं यहां से करूंगा तो सब्स्टिट्यूशन मिथाइल का 3 नंबर मिलेगा और यहां से करूंगा तो 5 मिलेगा। तो इसीलिए जहां पे 3 आ रहा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, दैट इज 1 2 3 4। 4 पे ही प्रोपाइल, 4 पे ही इथाइल, तो दैट इज 4 इथाइल, 3 मिथाइल, 4 प्रोपाइल, हेप्टेन। इस हिसाब से आपका नंबरिंग होगा। वन मोर, एक और प्रैक्टिस करते हैं, दिस CH3 CH2 CH, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ऑक्टेन। यस, वर्ड रूट इज ऑक्ट एंड ANE। अब नंबर सबसे छोटा कहां पे मिलेगा? तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। 4 पे ही इथाइल, 4 पे ही प्रोपाइल, 3 नंबर पे मिथाइल एंड 6 नंबर पे मिथाइल, so that is 4 ethyl, just because E comes first, then 3,6 dimethyl, then 4 propyl octane। बेसिकली आपको डाई को नहीं गिनना है, आप ऐसा मत सोचिएगा D comes first, no, E M and P, इथाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल, वही आपको कंसिडर करना है। तो दैट इज 4 पे इथाइल, देन 3,6 डाइमिथाइल एंड 4 पे ही प्रोपाइल, ऑक्टेन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर IUPAC नेम ऑफ अल्केन। ऐसे ही बहुत सारे IUPAC क्रैक करने हैं हमें, नेक्स्ट सेशन में और प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट सेशन। थैंक यू।